پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری یقینی بنانا، تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مبارکباد۔ قومی سلامتی کے تحفظ اور مؤثر دفاع کے لیے مکمل اعتماد کا اظہار۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار۔ کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور محمد میں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارت کو حقائق کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا اور اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ ترکی کے سفیر نے کہا ترکی پاکستان کی موقف کا حامی ہے۔ بھارت نے 11 لاکھ فوج کشمیر میں تعینات کر رکھی ہے، اس کے باوجود پہلگام واقعہ ہو گیا۔ کیا بھارتی فوج نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کشمیری بزرگ نے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانے والے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا حملہ کرنے والوں کو ڈھونڈنا بھارتی فوج کا کام ہے۔ کشمیری صحافی نے بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دی۔ کہا آپ کی فوج بے شک تعداد میں زیادہ ہے لیکن ہماری فوج معیار میں آپ سے کہیں بہتر ہے۔ بھارت کی ڈس انفارمیشن مہم اور یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یونانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات مسترد کر دیے۔ یونانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی طرف سے معاملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، یورپین خارجہ امور کی سربراہ خارجہ کلاس کی پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ سے فون پر بات۔ ایکس پر لکھا پاک بھارت وزرائے خارجہ سے تحمل رکھنے پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین صورتحال بہتر کرنے کے لیے بات چیت آگے بڑھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا، کہا پاکستان پہلگام واقعے کی آزادانہ شفاف تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس اسٹرکچر کو تباہ کر دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بھارتی رافیل طیارے مسلسل پاکستانی سرحدوں کے قریب اڑان بھر رہے ہیں۔ بھارت ہمیں مسلسل اشتعال دلا رہا ہے لیکن یاد رکھیں ہم پہل نہیں کریں گے، بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، ان کا منہ کالا کریں گے۔ بھارت کے پاکستان پر الزامات کا امریکہ کو بھی یقین نہیں۔ امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی، بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر لے۔ جے ڈی وینس نے کہا بھارت ایسا رد عمل دے جس سے علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔ بھارت نے جنگ مسلط کی، پاک فوج فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا دشمن کو واضح پیغام۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاک فوج ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں عسکری قیادت نے کہا پاکستانی عوام کی امنگوں کا ہر قیمت احترام کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا فوج اپنے عوام کے ساتھ متحد کھڑی۔ سپاہ سالار نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے کہا بھارتی افواج LOC پر شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کی کوششوں سے ہٹانا ہے۔ شرکاء نے بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک قرار دیا۔ کہا بھارتی حرکت سے 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی۔
फोरम ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल आर्मी चीफ की बदौलत आज भारतीय टॉप चैनल्स ब्लॉक हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय URLs ब्लॉक हुए। ये सब भारतीय तैयारी की तरह गिरा दिए गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब, सूद समेत अपनी वसूली की है। बशमूल इंडियन टॉप मीडिया चैनल्स, वेबसाइट्स, URLs गिराकर लिस्ट आपको देख लें। फैसल वाडा ने भारत के ब्लॉक किए गए चैनल्स की लिस्ट भी शेयर कर दी। APBN तेलुगु, CNN न्यूज 18, DD न्यूज, इंडिया TV, न्यूज 18 इंडिया, रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नाउ ब्लॉक किए गए। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात से क्यों मांगते हो? वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। पाक चीन दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक चीन दोस्ती सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने IMF से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा ले। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता है। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। एक के बाद एक भारतीय सियासतदान पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत से सवाल पूछने लगे। दावा किया गया कि पहलगाम वाक़या सरहद पार से किया गया, तो सबूत कहाँ हैं? कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट और पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी का मुतालबा। कहा, पहलगाम वाक़या बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कोताही है, मोदी को जवाब देना होगा। चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भी एतराज उठाया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। चरणजीत सिंह की जानिब से सवाल पूछने पर भारतीय गोदी मीडिया को आग लग गई। गोदी मीडिया ने चरणजीत सिंह को पागल करार देना शुरू कर दिया। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वजीर सैफुद्दीन सोस ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। सैफुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहम है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान दिया जाए। इस पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन को फरोग दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा अफसरान को बैरून मुल्क ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर भेजा जाए। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुर्रियत क़यादत को जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। मीरवाइज उमर फारूक कहते हैं, पहलगाम के बाद होने वाले वाक़यात से जाहिर होता है खौमियाजा कश्मीरी आवाम को भुगतना पड़ेगा। कश्मीरी नौजवान अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल के मावराए अदालत कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, पहलगाम वाक़े के तमाम तर सबूत और शवाहिद भारतीय हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। पाकिस्तान न पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है और न ही बेनिफिशियरी है। भारत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बनाया है। मारने के बाद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को पहले से लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोज और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा।
भारत की धमकियों का 1% खौफ नहीं। कशीदगी के बावजूद वाघा के करीब दयाल गांव के रिहायशी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं यहाँ कुछ नहीं बदला, कारोबार भी चल रहा है, माल मवेशी घर बार सब पहले जैसा है। लेकिन भारत ने डर के मारे अपने गांव खाली करवाकर लोगों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि सबूत के साथ हकायक दो हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दाचाक किया, अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, घरों की तामीर के लिए गए कर्ज की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं। जिना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। ATC लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी कर दी। नोश की ऑयल टैंकर में आतिशबाजी और धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। लाशें सौराब गोट ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। लकी मरबत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, शहरी जाबहक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी CGD अहलकार दम तोड़ गया। शहीद अहलकारों की तादाद 4 हो गई। हुकूमत मई के तीसरे हफ्ते में स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा करेगी। जराये का कहना है माहौल दोस्त मंसूबों की फंडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज से 30 अरब रुपए के फंड्स का हदफ है। सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी होंगे। ड्रैप का जाली इंपोर्टेड दवा की फरोख्त पर एक्शन। अमराज खून के जाली रोपेलिक इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया, रोपेलिक ह्यूमन NTD एमिनोग्लोबिन की दवा है। जाली इंजेक्शन का इस्तेमाल इंतहाई मुज़र सेहत हो सकता है। फार्मेसीज रोपेलिक इंजेक्शन के जाली बैच की फरोख्त फौरी रोक दें। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी उमूर के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर साजिद मीर 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार है। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फौज की तिब्बी अमले को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वीडियो ने इसराइल के दावे को गलत साबित कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो गई। इमदाद न मिलने से अहले गजा को खाने पीने की अशिया की शदीद कमी का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। बालाई सिंध और बलूचिस्तान में शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म, वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स में से निस्फ इब्तदाई वोटिंग में ही हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। हुक्मरान लेबर पार्टी और अपोजिशन लिबरल नेशनल इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी एल्बानीज दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे, ऑस्ट्रेलिया में वोट डालना लाजमी है वरना जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर ड्रोन हमला, 50 अफराद जख्मी। दूसरी हमले में खार्किव का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। यूरोपीय सार्फिन का डाटा यूरोप के बजाय चीन में महफूज करने पर यूरोपीय यूनियन ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 53 करोड़ यूरो जुर्माना कर दिया। हुकाम ने टिकटॉक पर डाटा प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। आज़ादी सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जाएगा, जिसका मकसद सहाफत के बुनियादी असूलों से मुतालिक शऊर उजागर करना और पेशा वराना फराइज की अदायगी के दौरान लाह खतरा से आगाह करना है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, करप्शन बेनकाब करने और पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। जाली खबरों और गलत मालूमात सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। प्रेस को आवाम और सरकारी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहिए। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARYB ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ज़ीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL के सनसनीखेज मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत की PSL डेब्यू पर 55 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम ने सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। साहबजादा फरहान 36 और बेन डॉर्शिस 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। आज इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकमल कहते हैं, इस्लामाबाद ने अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए, बॉलिंग नहीं की। कप्तानी में फर्क आया। मेहमान बने शेर अफजल मरवत, खेला मासूमाना खेल। कहा, PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं। जिन कामों का बेड़ा उठाया तो उसकी कोई कीमत नहीं दी। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। सिंध पुलिस के कमांडो बॉक्सर शहीर आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीर मिडिल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। शहीर का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।